Today, due to this COVID-19 infection, pandemic, whatever we say, it is a necessity to learn online. So I am going to present you my new channel, R Education. In this channel, we are going to learn English as well as computer for CBSE subjects and also other videos too. So today, we are going to start chapter number 1, the missing bat for the English subject for class 5. Myself Rignesh Tambakwala, and we are going to start with the first chapter, the missing bat. Before the chapter, there are certain words that you need to know. This is the first word, chacha. What is chacha? Chacha means uncle. The second word is stack. Stack means bunch of bats. The third word is hunchback. Hunchback means someone who is bent from forward side. The fourth one is flick. That means sudden. It was a quick movement. It's called flick. The fifth one is overnight. Overnight means during the night. During the whole night, it is called overnight. The next one is giggle. Giggles means to laugh softly, laugh silently. No one can knows that you are laughing. That is called giggle. Another one is dentures. Dentures means false teeth. The teeth are not real, it was false. Then in our missing bat, there are 4 characters. First character name is Abdul Rahman Chacha, who is the owner of the cricket bat factory. Second character, Amir. Amir, who is the worker in that bat factory. Third one, that is Ahmad, who is the son of Amir and is fond of playing cricket. And the fourth one, of course, the main character, missing bat. So we're going towards the chapters. I will read it from the book. You will also see from the book, and of course, we'll find it very interesting. Okay? So starting the first chapter, the missing bat. I will also explain you in Hindi if you don't understand. The first chapter will start in the book. The first line will start with it. Abdul Rahman Chacha owned a big cricket bat factory in Sangam near Srinagar. Now, Abdul Rahman Chacha, who is Abdul Rahman Chacha? He is the owner of that bat factory. He has a big cricket bat factory in Sangam near Srinagar. Where is Sangam? Near Srinagar. Now, all of you know that where Srinagar is. It is in the Jammu and Kashmir, right? One could see bats neatly stacked in all rows around his factory. अब हर कोई जो भी आता है वहां पे फैक्ट्री पे, वो ये देख सकता है कि जो बैट है वो पूरी तरह से सही तरीके से सारी बैट्स को उन्होंने रखा हुआ है, नीटली रखा हुआ है, जिससे हर कोई वो बैट देख सके. चाचा वॉज एन ओल्ड मैन विद अ हंचबैक. चाचा जो के है अब्दुल रहमान चाचा है, वो एक बुरे आदमी है. ही इज एन ओल्ड मैन विद अ हंचबैक. हिज बैक वॉज हंच्ड. हंचबैक मीन्स someone bent from forward like this. He's standing like this. He has a hunchback at his back. He was always frowning and always on his feet, tapping the walking stick as he went, trying to see what his worker were doing. वो हर बार गुस्से में रहता था, फ्राउनिंग. वो हर जगह पे गुस्से में रहता था और हर बार अपनी जो स्टिक थी, वॉकिंग स्टिक, उसे टैप करता रहता था. क्यों? ताकि वो देख सके कि उसके जो वर्कर है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं. अहमद फादर आमिर वॉज अ वर्कर एट चाचाज फैक्ट्री. चाचा की फैक्ट्री में अहमद के जो पिता थे आमिर, वो वर्कर थे. अहमद स्टे विथ हिम एट द फैक्ट्री एवरी डे आफ्टर द स्कूल. अहमद जब भी स्कूल से बाहर आता था तो वो सीधा फैक्ट्री पे चला जाता था अपने पिता के पास और वहीं पे उसके साथ रहता था. He would stare at all the stacks of cricket bats in awe. Now what is awe? वो हर एक क्रिकेट बैट को बड़े ध्यान से देखता था और खुशी से देखता था. क्यों? क्योंकि उसे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था. सो अहमद जो भी बंच ऑफ बैट्स रखे गए थे, जो चाचा ने नीटली रखे थे, मतलब एकदम सही से रखे थे, वो सारी चीजें वो देख सकता था. नाउ he liked to hold and run his finger across the bat after his father has shaped them with his machine. जब भी उसके फादर शेप करते थे बैट को, ठीक है, देन आफ्टर ही कैन
touch that bat and hold the grip of that bat and try to make the flicking of bat. Then, gripping one or by its handle, he would swing it in the air with a flick of his wrist. अब वो क्या करता था, जब उसके पिताजी बैट को शेप कर देते थे, ग्रिप कर देते थे, तो उस ग्रिप को पकड़कर वो बैट को घुमाता था, जोर से क्विक मूवमेंट दिखाता था, जोर से घुमाता था. क्यों? क्योंकि उसे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था. If Chacha caught Ahmed with a bat in his hand, he would clear his throat and say that it's not a plaything, boy, put it back. अब जब चाचा अहमद को पकड़ लेते थे बैट से खेलते हुए, तो वो तुरंत चाचा बोलते थे अहमद को कि ये खेलने की चीज नहीं है, उसे अपनी जगह पर, सही जगह पर रख दो. And under Chacha's watchful eye, Ahmed would put the bat in its place. और चाचा की नजर रहती थी कि अहमद ने उसकी जगह पर वो बैट रखी है या नहीं. Ahmed would put the bat in its place. Did the old man knows that he had been dreamed of being a Sachin Tendulkar someday? अहमद तो वो बैट रख देता था, लेकिन क्या चाचा को मालूम था कि अहमद का सपना क्या है? अहमद का सपना था कि वो एक दिन सचिन तेंदुलकर बनना चाहता था. He want to become a Sachin Tendulkar someday. Chacha was very particular about his stock. He liked to count the number of bats in his warehouse. He did this every evening before the workers left for home, and every morning as he loaded the bats onto his truck, he had imagined how he would play detective if any of his bats went missing. अब जो चाचा थे वो स्टॉक के बारे में बहुत ही पर्टिकुलर थे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से लिखते थे अपना स्टॉक. सुबह और शाम उनका ये हॉबी था, उनका ये पसंदीदा हॉबी था कि वो हर रोज और हर सुबह और शाम को वो बैट को गिनते थे. क्यों? क्योंकि शाम को वो इसलिए गिनते थे कि जब उसके वर्कर्स बाहर जा रहे हैं फैक्ट्री के, तो सारी बैट्स जो भी बनाई है वो सही से रखी है या नहीं. और सुबह इसलिए गिना जाता था कि उस बैट्स को अगर उन्हें ऑर्डर मिला है और अगर उस बैट्स को उन्होंने लोड करना है ट्रक में, तो पहले वो गिन लेते थे कि कितनी बैट्स रखी. और वो एक डिटेक्टिव की तरह ये चीजें करते थे, जैसे जासूस हो उस तरह से ये चीजें करते थे, ताकि अगर कभी भी कहीं पे भी बैट मिस हो जाए तो उन्हें पता चल जाए कि वो बैट कहां से मिस हुई है. एंड इट हैपेंड वन मॉर्निंग व्हेन चाचा ओपन्ड द वेयरहाउस to take the stock out and load into his truck, he found that there was one bat missing. और ये हो गया, चाचा को जिस बात का डर था वो हो गया. एक बैट, जैसे ही चाचा ने दूसरे दिन दरवाजा खोला, वेयरहाउस मतलब गोडाउन जहां पे हम सारी बैट्स का स्टॉक रखते हैं, तो चाचा ने जैसे ही वेयरहाउस खोला, बैट को लोड करवाने के लिए, ट्रक में लोड करवाने के लिए जैसे ही चाचा ने दरवाजा खोला, तो उन्होंने पाया कि एक बैट मिसिंग है. He was furious because he had admired the bat just the previous evening. It was the biggest and lightest one of all. वो बहुत गुस्सा हो गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही उस बैट को चेक किया था और उन्होंने इस बैट की प्रशंसा भी की थी कि ये बैट सबसे बड़ा और सबसे हल्का है, माने बहुत अच्छी क्वालिटी का बना है. That afternoon, Chacha gathered the workers and made them stand in a row. उस दोपहर को चाचा ने सारे वर्कर्स को एक लाइन में खड़ा रहने के लिए बोल दिया. One bat is missing. Where do you think it could have gone? चाचा ने सवाल पूछा. एक बैट मिसिंग है, कौन बता सकता है वो बैट कहां गया? The workers looked down and shook their heads. अब शुक का मतलब क्या होता है कि अपने सर हिलाने लगे कि हमने कुछ नहीं मालूम. तो इस तरह से वर्कर ने नीचे देखा और अपने जो सर है उसको हिलाया कि हमें नहीं मालूम. They found it difficult to look at Chacha when he was angry. उन सबको चाचा से डर लगता था. उन्हें लगता था जब चाचा गुस्से में हो तब उनके सामने नहीं देखना चाहिए, नहीं तो चाचा हम पर बरस पड़ेंगे. इसलिए वो लोग सब नीचे देखने लगे. No one other than you and me enters the warehouse. So where is it? shouted Chacha. चाचा जोर से चिल्लाकर बोले कि तुम्हारे और मेरे सिवा कोई भी वेयरहाउस में आ नहीं सकता, तो तुम मुझे बताओ बैट कहां गया.
His eyes found Amir. A bat can't disappear overnight. Can't it? He asked. उसने आमिर को देखा और उसने आमिर से पूछा, एक रात में बैट गायब नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? You are right, चाचा. It can't. आमिर ने कहा, जी चाचा, आप सही बोल रहे हो, बैट कहीं नहीं जा सकता. Where is Ahmed today? आमिर, I do not see him around. अब चाचा ने अहमद के लिए पूछा. चाचा ने कहा, अहमद कहाँ है? आज मैंने उसे यहां पे नहीं देखा. Ahmed is not well, चाचा. He is resting at home today, answered Amir, now looking straight at the other man. तो आमिर ने चाचा को आंसर दिया कि अहमद की तबीयत आज अच्छी नहीं है, तो वो घर पे है. फिर चाचा ने बाकी के लोगों की तरफ देखा. Suddenly, one by one, the workers began to giggle. Chacha's beard quivered in anger as he shouted, "What is so amusing?" Amir began to study his toes again. Suddenly, उसने सबने एक के बाद एक धीरे से हंसना चालू कर दिया, गिगल करना चालू कर दिया. धीरे से हंसना, गिगल मीन्स टू लाफ साइलेंटली. उन्होंने धीरे से हंसना चालू कर दिया और वो धीरे से हंसने लगे तो चाचा को और गुस्सा आया. चाचा बोलने लगे, इसमें हंसने की क्या बात है, क्या मनोरंजन हो रहा है? तो जब चाचा और गुस्से हो गए तो आमिर ने वापस अपने पैरों की तरफ देखना शुरू कर दिया. Upon hearing him shout, everyone burst into laughter. We found the missing bat, चाचा exclaimed आमिर. उनकी दाढ़ी जो थी वो हिल रही थी और गुस्से में आ गए तो उनकी दाढ़ी हिलने लगी. तो दाढ़ी को हिलते हुए देख सारे वर्कर्स जोर से हंस पड़े. बस्ट विथ लाफ्टर, जोर से हंस पड़े. इतने में आमिर ने चिल्ला के कहा, चाचा बैट मिल गया. Surely this had to be some joke, thought Chacha. He didn't think that he could any angrier than he already was. You have standing in front of me all this time, so how could you found it? He spat out. तो चाचा ने सोचा कि आमिर मेरे से मजाक कर रहा है, जोक कर रहा है. फिर चाचा ने कहा आमिर से कि तुम तो सुबह से मेरे सामने खड़े हो, अभी से मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें बैट कैसे मिल गया? Eyes shining, a big grin on his face, Amir pointed at Chacha's walking stick. The old man looked down. अब आमिर की आंखें वो चमकने लगी, चेहरा खुशी से लाल हो गया और उसने खुश होकर चाचा के सामने पॉइंट किया, उनकी वॉकिंग स्टिक के सामने पॉइंट किया. चाचा ने नीचे देखा. None of the worker has known until that day that Chacha could laugh so loudly or that he wore dentures. तब सारे वर्कर्स को पता चला कि चाचा इतनी जोर से भी हंस सकते थे या चाचा ने नकली दांत पहने हुए थे, क्योंकि चाचा की जो वॉकिंग स्टिक थी वो सही में वॉकिंग स्टिक नहीं थी. चाचा बैट लेकर ही चल रहे थे, वही बैट जो मिस हो गया था. तो चाचा ने जब नीचे देखा कि उन्होंने ही खुद बैट पकड़ा हुआ है, तब उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ. सो वो जोर से हंसने लगे. तब सबको मालूम पड़ा कि चाचा भी हंस सकते हैं और चाचा के नकली दांत हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी. द स्टोरी इज बीन क्रिएटेड बाय वैशाली श्रॉफ. वैशाली श्रॉफ इज अ राइटर, एडिटर एंड स्टोरी टेलर. उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज लिखी है जिसमें बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए इसके बारे में लिखा गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज. We will meet you again in the next video. Please subscribe my video and also press the bell icon. Thank you.